Good morning, student. Today I will start a new topic of this chapter. This new topic is measures to reduce unemployment. How unemployment can be removed in our country? What are the measures which are taken by the government in order to remove unemployment in our country? Government takes different measures to remove unemployment in our country. We will discuss these measures one by one. The first measure is special employment generation programs. Government started different programs in our country in order to reduce unemployment. For example, government passed Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in the parliament in September 2005. Okay, government passed an act in the parliament in September 2005. This act is known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This act was passed in the Indian Parliament in September 2005, but it was launched in the country in February 2006. Actually, in February 2006, this program was started only in 200 backward districts. After that, first April 2008, this program was implemented in the whole country. Initially, this program was started only in 200 backward districts in February 2006, but on 1st April 2008, this program was implemented in the whole country. Through this program, government provide jobs only for 100 days. If government fail to provide job for 100 days, then government provide unemployment allowances so that unemployed person can fulfill their basic needs with the help of this unemployment allowances. Okay. Moreover, there is 1/3 reservations for women out of total jobs. This program provide 1/3 reservations for women in the total jobs. Okay, government also created two fund so that government provide salaries to the employees, so that government provide unemployment allowances. Government create two funds for providing salaries or for providing unemployment allowances. Central government establish National Employment Guarantee Fund, and state government also establish State Employment Guarantee Fund. These funds are established by the state government and central government in order to provide salaries to the employees for 100 days in order to provide unemployment allowances. Okay, this program was very successful, and it create a lot of employment opportunities in our country. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए. जैसे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एक्चुअली ये जो एक्ट है मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये पार्लियामेंट के अंदर सितंबर 2005 में पास हुआ था. ओके, मनरेगा एक्ट पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सितंबर 2005 में पास हुआ था. और ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया के अंदर जो स्टार्ट हुआ था वो फरवरी 2006 में स्टार्ट हुआ था. मनरेगा एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था 2005 में, लेकिन कंट्री में जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो फरवरी 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ है.
और फरवरी 2006 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 में ये पूरी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो 100 डेज के लिए लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी, और अगर गवर्नमेंट 100 डेज के लिए किसी को जॉब नहीं दे पाई तो फिर गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के थ्रू इतना अमाउंट उसको दे देगी कि वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर लेगा, तो पॉवर्टी लाइन के अबव आ जाएगा। ओके, इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में ये भी डिसाइड किया गया था कि अगर 900 टोटल जॉब सपोज क्रिएट हुई तो उसमें से 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। 900 जॉब का 1/3, 900 जॉब का 1/3 इट मींस 300 जॉब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी, इसमें मैन अपॉइंट नहीं हो सकते। 900 में से 300 सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व कर दी थी। इसके अलावा जो 600 जॉब बाकी बची उस पर मैन और वुमेन दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। यानी शुरू की 300 जो जॉब्स थी है ना, 1/3 जो जॉब थी उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है वुमेन अपॉइंट होगी, मैन अपॉइंट नहीं हो सकते। और जो रिमेनिंग 2/3 जॉब बची है ना, उस पर मैन वुमेन दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। ये वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी के अंदर वुमेन को 1/3 जॉब का रिजर्वेशन दिया गया था। इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ने 2 फंड क्रिएट किए थे। एक था सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया था, उसका नाम था नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया था, उसका नाम था स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये फंड इसलिए क्रिएट किए थे ताकि लोगों को सैलरीज प्रोवाइड कर सके, ताकि इस फंड में से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे सके। क्योंकि इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि हर इंसान को एटलीस्ट 100 डेज के लिए हम जॉब देंगे। जब 100 डेज के लिए जॉब देंगे तो फिर उनको सैलरी भी देनी होगी, और जिसको जॉब नहीं दे पाएंगे अगर बाय द वे सपोज, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहाँ से दिया जाएगा और 100 डेज के लिए सैलरीज कहाँ से दी जाएगी, उसके लिए 2 फंड बनाए गए थे। एक था नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था। ये प्रोग्राम काफी हद तक सक्सेसफुल रहा और काफी लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली थी और काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हुआ था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए। जैसे एक है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ये डिसाइड किया गया था कि ये प्रोग्राम जो है वो विलेजेस में और रूरल एरियाज में स्टार्ट होगा, और बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जो बैकवर्ड थे, और बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जहां पर सीमेंटेड रोड नहीं थी, जहां पक्की रोड नहीं थी, और रेनी सीजन में वहां ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि पक्की रोड नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने ऐसे विलेजेस जो बैकवर्ड हैं जहां पर पक्की रोड नहीं है, उन विलेजेस में, उन टाउन्स में पक्की रोड बनाई जाए, और उन डाबर की रोड्स बनाने में, उन सीमेंटेड रोड बनाने में ऐसे वर्कर काम करेंगे जो वर्कर अनएम्प्लॉय हैं और अनएजुकेटेड हैं। तो विलेजेस में रोड्स बनाई गई, ये कंस्ट्रक्शन किया गया, और फिर उन रोड्स को फिर हाईवे से कनेक्ट किया गया, और विलेजेस के अंदर रोड्स बनाने में ऐसे वर्कर को इस्तेमाल किया गया, ऐसे वर्कर काम कर रहे थे जो वर्कर पहले अनएम्प्लॉय थे और अनएजुकेट थे। इस तरह से अनएम्प्लॉय और अनएजुकेट वर्कर को जो है वो रोड के कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल गई, और बहुत दिनों तक रोड्स बनती नहीं और गांवों विलेजेस के अंदर, और फिर उन विलेजेस के अंदर जो रोड्स बनी उन रोड्स को फिर हाईवे से कनेक्ट किया गया। इससे एक साथ 2 फायदे हुए। एक फायदा ये हुआ कि जो अनएजुकेट और अनएम्प्लॉय पर्सन थे उनको महीनों, उनको सालों जॉब मिल गई रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा फायदा ये हुआ कि विलेजेस में रोड बन गई तो डेवलपमेंट हो गया।
तो एक साथ दो एम गवर्नमेंट के एम अचीव हुए थे, एक तो डेवलपमेंट हो गया था और दूसरा जो है अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब भी मिल गई थी एज ए वर्कर इन रोड्स के कंस्ट्रक्शन में। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। ओके, ये एक फर्स्ट मेजर था गवर्नमेंट का जिससे थ्रू गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना चाहती है। सेकंड जो मेजर है वो ये है, वी मस्ट यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन अवर कंपनीज इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एक्चुअली अगर जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए और जो प्राइवेट कंपनीज हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो भी लेबर इंटेंसिव अगर टेक्निक यूज करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मशीन्स जो है वो कम होंगी। सपोज वर्कर्स 500 हैं और मशीन 50 है, तो वर्कर्स ज़्यादा हैं और मशीन कम है, तो इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर जितनी भी इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, उन सब में अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज किए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक में वर्कर्स को यूज किया जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को जॉब मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। आजकल जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर आजकल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा मशीन यूज करते हैं और मशीन ज़्यादा यूज करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इनका एम है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है। अगर हम अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही ना देखें, मैक्सिमम प्रॉफिट ही को हम अपना मेन मोटिव ना बनाएं, बल्कि प्रॉफिट के हम प्रॉफिट अर्न करें लेकिन इसके साथ साथ कुछ वेलफेयर के भी काम करें, जैसे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ऐसा पॉसिबल है कि अगर जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, अगर सारी इंडस्ट्रीज, सारी फैक्ट्रीज, सारी कंपनीज अपने यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगी, यानी ज़्यादा वर्कर्स को यूज करेंगी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो ज़्यादा वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी और ज़्यादा वर्कर्स को जॉब मिलेगी और काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की जगह पर अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वर्कर्स हम यूज़ करेंगे तो वर्कर्स को ज़्यादा जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक रिमूव किया जा सकता है। ये सेकंड मेजर्स था। एक और है इसमें मेजर्स है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इंडियन एजुकेशन शुड बी employment oriented. We should get technical education, professional education in order to get job easily and quickly. एक्चुअली जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, जिस ऐसी एजुकेशन हो जिससे जल्द से जल्द जॉब मिल सके। अब किस तरह से होना चाहिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर हम जो है वो ऐसे कोर्सेज करें जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो उससे जॉब जल्दी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल बीकॉम करने के बाद या बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद अगर हम सपोज मास कॉम करते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, या फिर एमबीए करते हैं या एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर करते हैं या एमटीए मास्टर ऑफ टूरिज्म करते हैं या एमएफसी मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करते हैं, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इन प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद जो है जल्द से जल्द जॉब मिल जाती है एमएनसीज के अंदर, कंपनीज के अंदर। तो अगर कोई इंसान सपोज बीकॉम करता है, बीकॉम के बाद एमकॉम करता है, पीएचडी करता है, तो बहुत टाइम लगेगा और
और फिर भी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है, मिल भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज की आजकल ज़्यादा डिमांड है और एमएनसीज में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर इंडिया में नहीं तो इंडिया से बाहर भी जॉब्स में काफ़ी मिल जाती हैं। तो अगर हम बाय द वे ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे जल्दी जॉब मिल सकती है उससे, और हम सेल्फ डिपेंड जल्दी हो सकते हैं। जैसे अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन मास कॉम करते हैं, एमएसडब्ल्यू करते हैं, एमटीए करते हैं, एमएफसी करते हैं, तो अगर ये प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि ये कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पाते और जॉब मिल जाती है। जैसे अगर कोई एमबीए फाइनल ईयर के अंदर है तो कंपनीज आके एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का इंटरव्यू लेती हैं और उनका एमबीए कंप्लीट नहीं हो पाता और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। सपोज कोई एमसीए कर रहा है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा है, तो एमसीए के फाइनल ईयर में है, अभी एग्जाम भी नहीं हुए फाइनल ईयर के, और कंपनीज आकर जो है वो उन जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं जो वो फाइनल ईयर के अंदर होते हैं, और जब भी उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू कर देती हैं कि आप एमबीए और एमएफसी कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट हमारी कंपनी में ज्वाइन करिएगा। इवन उनको ये कोर्स करने के बाद जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है, पहले से जॉब उनके पास अवेलेबल हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के कोर्सेज करें ग्रेजुएशन के बाद, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिनमें जॉब की स्कोप ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा जल्दी जॉब मिल सकती है और अच्छी जॉब मिल सकती है और हम ज़्यादा जल्दी सेटल हो सकते हैं लाइफ के अंदर। ओके, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स ज़्यादा करें, प्रोफेशनल कोर्स ज़्यादा करें, जिसकी डिमांड आजकल ज़्यादा है, जिसकी स्कोप, जिस प्रोफेशनल कोर्स का स्कोप ज़्यादा है, जैसे मास कॉम का, एमएसडब्ल्यू का, एमटीए का, एमएफसी का, जिस प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी स्कोप ज़्यादा है, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वो कोर्सेज में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हों और अच्छी यूनिवर्सिटीज से कोर्स करें जहाँ पर 100% प्लेसमेंट हो, तो ताकि हमें जो है जॉब जल्दी जल्दी मिल सके। तो एक हमें जो है थोड़ा सा अपने एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमें प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा ताकि जॉब जल्दी मिल जाए। एक पॉइंट। दूसरा, एक और चीज करना पड़ेगी, वो क्या है? टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन से भी हम लोगों को जॉब मिल सकती है। अब टेक्निकल एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पुअर हैं और वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते, वो हायर एजुकेशन कोर्सेज नहीं कर पाते, उनके पास स्कॉलरशिप भी नहीं है और अमाउंट काफ़ी कम है, तो वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते, वो सिर्फ 10-12 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हायर स्टडी वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उस केस में भी एक रीजन है, उनको भी जॉब मिल सकती है। कैसे? कि अगर वो 10-12 करने के बाद सपोज कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं, टेक्निकल कोर्स जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कर लेते हैं, तो फिर वो एज ए सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। अब सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो पर्टिकुलर पर्सन 12 क्लास करने के बाद अब वो सपोज अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से 12 के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहा सपोज, तो अब वो सपोज मोबाइल का रिपेयरिंग का कोर्स कर लेता है या फिर लैपटॉप के रिपेयरिंग का कोर्स कर लेता है, हार्डवेयर का कोर्स कर लेता है, या तो वो ये कोर्स करने के बाद भी वो अपनी एक पर्टिकुलर शॉप खोलकर मोबाइल की रिपेयरिंग का काम कर सकता है या फिर लैपटॉप की रिपेयरिंग का काम कर सकता है, उसमें भी वो काफी अर्निंग कर सकता है, वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉय बन सकता है। ओके, इसी तरह से कोई अगर बाय द वे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन कोर्स करने के बाद भी जो है वो एज ए इलेक्ट्रीशियन वो जॉब कर सकता है इसके अंदर। तो जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर के कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कोर्सेज होते हैं। अगर हम ये टेक्निकल कोर्सेज अगर करेंगे तो उससे भी जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। ओके, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर्स भी खोले हैं जहां पर जो है टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो 10 और 12 के बाद होते हैं और ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। इन टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद भी आपको जॉब जल्द से जल्द मिल सकती है। तो इसलिए हमें ऐसे कोर्सेज करना चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड हो, जिनसे जॉब जल्द से जल्द हमें मिल सके। तो इससे क्या होगा कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट थोड़ा सा डाउन हो सकता है, कम हो सकता है।
एक मेजर्स। एक और इसमें मेजर्स है वो मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आजकल हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमें किसी कंपनीज में जॉब मिल जाए, किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए, तो हम किसी दूसरी जगह काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ अगर बाय द वे हमें कंपनीज में जॉब नहीं मिल पा रही है, या इंडस्ट्रीज में जॉब नहीं मिल पा रही है, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसका फिर दूसरा ऑप्शन भी हमें अपने पास रखना चाहिए। वो दूसरा ऑप्शन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एमकॉम कर चुका है या एमए कर चुका है, बीएड एमएड कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, लेकिन सपोज उसको किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जॉब नहीं मिल रही, तो अब अगर वो नॉलेजेबल पर्सन है और सब्जेक्ट कमांड है उसको, और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो अपनी कोचिंग भी रन कर सकता है। अगर वो अपनी कोचिंग रन करेगा तो उसमें भी वो एक सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएगा, उसमें भी काफी अर्निंग कर सकता है। और आजकल जो साइंस की कोचिंग्स वगैरह होती हैं, तो उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो ऐसे टीचर किसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो उतनी सैलरी नहीं होगी जितनी ज़्यादा वो साइंस की कोचिंग्स में वो लोग अर्निंग कर लेते हैं। तो ऐसे भी है कि अगर कोई बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, सब्जेक्ट कमांड है, और अनफॉर्चुनेटली उसको अगर जॉब नहीं मिल पा रही है किसी स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में, तो वो फिर अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सकता है, मतलब वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है। इसी तरह से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने सपोज एमबीबीएस कर रखा है और एमबीबीएस एमडी कर रखा है, अब उसको किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो फिर अपनी क्लिनिक या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर अपने यहाँ खुद ही सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है, और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, और डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी कॉमर्स के स्टूडेंट ने अगर सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीए करने के बाद अगर उसको कोई अच्छी सैलरी, इसकी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आजकल सीए करने के बाद लोग कंपनीज में जॉब करना प्रीफर नहीं करते, बल्कि अपने ऑफिस सेटअप कर लेते हैं। उस ऑफिस के अंदर वो अलग अलग कंपनीज का अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा इनकम हो जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करेंगे तो वहाँ 60, 70, 80 हज़ार मिलेंगे, लेकिन अपना ऑफिस सेटअप करने के बाद और डिफरेंट कंपनीज के अकाउंट बनाने के बाद वो लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर बाय द वे कोई सीएस करता है, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, या बीए एलएलबी करता है, क्लैट क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद उसको अगर जॉब नहीं मिल पाती है, तो उसका भी एक सिंपल है कि वो भी अपने ऑफिस सेटअप करके लीगल एडवाइजर बन सकता है। तो इस तरह से ये है कि एक ऑप्शन ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने का, या फिर कि अगर बाय द वे किसी कंपनीज के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर अगर जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो हम दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, और वो दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। हम जो है वो अपने ही ऑफिस सेटअप कर उसमें सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर बाय द वे किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, कोई बिजनेस को सेटअप कर सकता है, रन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, लेकिन वो फाइनेंस नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से बिजनेस सेटअप नहीं कर पा रहा, तो उस केस में वो बैंक से लोन लेता है और कुछ अपनी सेविंग यूज करता है, उससे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लेता है, और फिर उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर वो गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, खुद को भी जॉब मिल जाती है और 10-12 बाहर के लोग भी उसमें जॉब करने लगते हैं। इस तरह से उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश न्यू कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज so that more employment opportunities can be increased in our country. इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक स्टेप ये भी लेना होगा कि गवर्नमेंट हमारी कंट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट हमारी कंट्री के अंदर न्यू कंपनी सेटअप करे, न्यू फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करें, न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें, ताकि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, जीडीपी भी इंक्रीज हो। इसके साथ साथ न्यू कंपनीज में, न्यू फैक्ट्रीज के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो।
तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए एक ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के अंदर न्यू फैक्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू कंपनी सेटअप करे पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिससे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, जीडीपी भी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। इसके साथ साथ न्यू कंपनीज में, न्यू फैक्ट्रीज में, न्यू इंडस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लोगों को जॉब भी मिलेगी। जब न्यू कंपनी खोलेंगी, न्यू इंडस्ट्री खोलेंगी तो लोगों को जॉब भी मिलेगी। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो रिड्यूस हो सकता है। एक ऑप्शन ये भी है इसके अंदर। तो ये डिफरेंट मेजर्स है जिसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ओके, ये अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग एक्सप्लेन किए थे। इससे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के मेजर्स हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, है ना। और एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज को भी हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसका नाम था अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, थैंक यू।